Hello everyone and welcome to the very first lecture of our physics learning journey. My name is Rushikesh and I will be your guide as we explore the fascinating world of physics together. Whether you are studying in school, preparing for board exams or aiming for competitive exams like Olympiad, this channel is designed to make physics simple, clear and enjoyable for all standard and boards. Starting the series for class 10th state board students as the exams are near for them. So इस जर्नी में हम पहले फिनिश आउट करेंगे क्लास 10th का सिलेबस. ओके, फर्स्ट वी विल ट्राई टू फिनिश इट आउट फॉर द स्टेट बोर्ड्स. ओके, then after that we will start science for CBSE and after that I will start for the ICSE. Okay, so you will find out all the types of videos related to science here. Now let's start. We are starting the first chapter of state board, which is nothing but part 1 for them. Okay, this is the very first chapter of part 1, which is nothing but the gravitation. So what is meant by gravitation? पहले तो ये कंसेप्ट आया कहाँ से? सब लोग जानते हैं कि एक स्टोरी है, ग्रेविटेशन वाज इन्वेंटेड बाय सर आइजैक न्यूटन. तो एक स्टोरी है, न्यूटन भाई साहब बैठे थे एप्पल के पेड़ के नीचे एंड सडनली एक एप्पल नीचे गिरा एंड आफ्टर दैट वो सोचने लगे कि ये जो एप्पल है, व्हाई दिस एप्पल फॉल्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट? मतलब ये जो एप्पल है, एप्पल का डायरेक्शन बस ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों था एप्पल फॉल का? व्हाई कि ये जो एप्पल है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं किया, या फिर ये ऊपर ही क्यों नहीं गया, right? This was the question which came in to his mind. Okay, and every time जब हम gravitation पढ़ते हैं, it's not about only this story कि न्यूटन ने एक एप्पल पेड़ से नीचे गिरते हुए देख लिया and gravitation का invention हुआ. Okay, it is not about that one. Okay, there are thousands of experiments into the labs. Okay, तो ऐसा है नहीं कि न्यूटन ने जस्ट एप्पल को नीचे गिरते हुए देखा and gravitation का invention हो गया. Okay, उसके जो एफर्ट्स है, thousands of experiments in the lab, and after that he came to one concept which is nothing but the gravitation. Okay, which is nothing but the universal force of attraction. तो ये जो एप्पल नीचे गिरा है, तो एप्पल नीचे गिरने का कॉन्सेप्ट है कि ये जो अर्थ है, अर्थ ने एक फोर्स एक्सर्ट किया एप्पल पे, दैट इज व्हाई वो जो एप्पल है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरा. Okay, so gravitation is the universal force of attraction between any two bodies with masses. तो अगर किसी भी दो बॉडीज को मास है तो वहां पे ग्रेविटेशन रहेगा. What are the examples? Objects falling down. कोई भी चीज आप ऊपर फेंक दो, at the end वो कहाँ पे आएगी? नीचे ही आएगी. Correct? Only due to gravitation. Then satellite revolving around the earth. Like ये मून का ही एग्जांपल देख लो. Okay, moon is revolving around the earth. Okay, only due to gravitational force. Planets stay in the orbit. This one is also only due to gravitational force. तो अगर आप देखोगे gravitational force. Okay, one more thing about the gravitational force which I want to tell you. The weakest force in nature, weakest force is nothing but the gravitational force. सबसे weakest force है. But if you see, it can define the future of any two planets. Correct? Because अगर आप देखोगे, consider ये अगर अर्थ का अर्थ है, so consider अगर अर्थ की gravitational field के अंदर कोई दूसरा planet आता है, what happens? What will happen? Right? तो जो अर्थ है, अर्थ will exert the attractive force on that planet and that planet will be attracted towards earth, then boom. Are you getting my point? So gravitational force is the weakest force of nature, but it can decide the future of any planet. Okay, so this is the main thing about the gravitation. Let's come to the next point. What is the difference between the gravitation and gravity? Gravitation is the force of attraction acting between any two bodies of the universe, and gravity is the Earth's gravitational pull. Okay, means simple concept, like you just need to understand what is meant by gravitation. Right? Then one point is there,
Before coming to the circular motion, I want you to understand what is motion. What is motion? Right? Consider कि A एक बॉडी है, इन 10 सेकेंड ये जो है 10 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल करता है 100 मीटर. जस्ट कंसीडर वन एग्जांपल. ओके, तो वो जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे आ जाता है. ओके, नाउ इफ यू सी व्हाट इज मीन बाय मोशन. मोशन इज नथिंग बट change in position of the object. Change in position of the object is nothing but the motion. अगर with respect to time कोई भी बॉडी अगर उसका पोजीशन चेंज करता है, स्टेट ऑफ मोशन चेंज, स्टेट ऑफ पोजीशन चेंज करता है, दैट इज नथिंग बट द मोशन. ओके, कोई भी बॉडी फॉर एग्जांपल एक जगह से दूसरे जगह पे जाना, मूवमेंट ऑफ एनी बॉडी इज नथिंग बट द मोशन. नाउ व्हाट इज मीन बाय सर्कुलर मोशन, राइट? अभी एक एग्जांपल देखते हैं. कंसीडर कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है, कोई एक बॉडी कंसीडर कर लो. बिफोर कमिंग टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, पहले सर्कुलर मोशन को जानते हैं. बिकॉज अगर सर्कुलर मोशन नहीं है तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी नहीं रहेगा. सेंट्रीपिटल फोर्स आपका कभी लीनियर मोशन में एग्जिस्ट करता ही नहीं है. अगर वहां पे सर्कुलर मोशन है तभी आपका सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा. अगर सर्कुलर मोशन नहीं है so there will not be any centripetal force. So what is mean by circular motion? Circular motion अगर आप देखोगे, अगर ये ऑब्जेक्ट है, whenever an object travels along the circumference of circle. If you see, this is the circumference of circle. Are you getting? This is the circumference of circle. Coming to the original point here. So अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका okay along the circumference of circle अगर ट्रैवल करता है, then we can say that the object is in circular motion, right? Now you got my point. What is meant by circular motion? किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन along the circumference of circle is nothing but circular motion. तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब आपका सर्कुलर मोशन में होता है तो सर्कल के सेंटर, ओके, ध्यान से सुनना, सेंटर सीकिंग मींस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल जो फोर्स एक्ट होता है. ओके, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका सर्कुलर मोशन में है तो टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल जो फोर्स एक्ट होता है, दैट इज नथिंग बट द सेंट्रीपिटल फोर्स. लेट्स सी द डेफिनेशन. अ फोर्स एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द सर्कल, राइट? मतलब अगर आपका सर्कुलर मोशन है तभी आपका सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा. अगर सर्कुलर मोशन नहीं है तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, राइट? एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. दिस इज द मेन पॉइंट. जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन आपका टुवर्ड्स द सेंटर होता है. वन मोर फोर्स इज देयर इन आवर सिलेबस व्हिच इज नथिंग बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट? तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डेफिनेशन अलग है, मींस अपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स. But main thing here is the direction. What is the direction of centripetal force? The direction of the centripetal force is towards the center of the circle. Okay, this is called centripetal force. Centripetal means center seeking. Okay, now what is like that is the object tries to go towards the center of circle because of this force. Okay, now let me erase this one so that you will be able to see this diagram clearly. अगर आप देखोगे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, राइट? एक ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट आपका कौन सी मोशन में है? देख लो, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, along the circumference of circle ट्रेवल करेगा. तो along the circumference of circle जो मोशन होता है, which is that motion? Circular motion. तो सर्कुलर मोशन में towards the center of circle जो आपका फोर्स रहेगा, that is nothing but centripetal force. ओके, एंड जो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल होता है वो होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ओके, अभी आप पूछोगे कि अगर डायरेक्शन क्या रहेगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या रहेगा, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है along the tangent. What is the direction of velocity? Direction of velocity is along the tangent. टेंजेंट पता है सबको? राइट, टेंजेंट मतलब क्या होता है? किसी भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना. मतलब यहां से जो डायरेक्शन रहेगा आपका
that will be the direction of your velocity. So अभी कुछ डाउट है आपको सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स में? व्हाट इज मीन बाय सर्कुलर मोशन? सर्कुलर मोशन इज नथिंग बट अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका along the circumference of the circle travel करेगा, that is nothing but circular motion. And what is meant by centripetal force? अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका सर्कुलर मोशन में है तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल जो आपका फोर्स रहेगा that is nothing but centripetal force. Okay, let's start the next concept which is nothing but the Kepler's law. अभी ये जो पॉइंट है, दिस वन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, इफ यू सी, ये जो केपलर्स लॉ का जो क्वेश्चन है मतलब किसी भी फॉर्म में आ सकता है, विद रिस्पेक्ट टू डायग्राम आ सकता है या फिर आपको 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि केपलर्स के लॉ लिखिए. ओके, तो ये जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ओके, फ्रॉम दिस चैप्टर व्हिच इज नथिंग बट द ग्रेविटेशन. ओके, सो लेट्स सी केपलर्स लॉ. तो पहले कैसे होता था कि जो लोग हैं ज्यादा सोचते थे, राइट, मतलब जो थिंकिंग है उनका अलग वे से था. अगर आप देखोगे ना, अभी अगर हमें ऑब्जर्वेशन करना है स्पेस का तो अभी तो हम अपने पास टेलीस्कोप है, वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स है, क्योंकि अभी साइंस बहुत आगे निकल चुका है, राइट. बट अगर आप पहले की बात करोगे, मतलब गैलीलियो, कोपरनिकस, ये जो साइंटिस्ट थे फ्रॉम दैट टाइम, तो अगर आप पहले की बातें देखोगे तो वो लोग कैसे ऑब्जर्व करते थे चीजों को, राइट. मतलब उनका बोलना ये था कि हाँ यार, अभी अगर सॉरी मून यहाँ पे है तो वहां पे क्यों है, राइट. उसका अगर पोजीशन चेंज होता है तो क्यों होता है, किस रिस्पेक्ट में होता है. सन अगर यहाँ पे है तो क्यों है, उसका पोजीशन कैसे चेंज होता है. अर्थ का भी पोजीशन अगर चेंज होता है तो क्यों होता है, कैसे होता है. अगर आप अपनी थिंकिंग देखोगे तो एट दिस पर्सपेक्टिव जाने दो यार, अगर है तो है जान, क्या करना है, राइट. क्योंकि मोबाइल, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट. तो थिंकिंग चेंज हो गई. तो लेट्स कम टू आवर पॉइंट व्हिच इज नथिंग बट द केपलर्स लॉ. तो केपलर ने ये ऑब्जर्व किया था कि जो ऑर्बिट्स ऑफ द प्लैनेट है, प्लैनेट का ऑर्बिट कैसे रहेगा. पहले तो हमें बस इतना पता था कि सेंटर ऑफ द, ओके, कोपरनिकस के टाइम पे तो ऐसा था कि अर्थ इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड अर्थ के अराउंड सारे प्लैनेट्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं इंक्लूडिंग सन आल्सो, राइट. मतलब पहले थिंकिंग ये थी. उसके बाद आफ्टर सम ऑब्जर्वेशंस गैलीलियो ने टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया. आफ्टर सम ऑब्जर्वेशंस पता चला कि अर्थ इज नॉट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, सन इज, राइट. तो केपलर्स ने क्या बताया, केपलर्स ने जो ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट्स है, ओके, पहले सर्कुलर बताई जाती थी, बट केपलर ने बताया which is nothing but Kepler's first law, the orbit of the planet is an ellipse with the sun at one of the foci. ओके, तो अगर कोई भी आपका इलिप्स है, राइट, कंसीडर इट दिस इज द इलिप्स. ओके, इलिप्स को हमेशा 2 पॉइंट होते हैं, दिस इज वन फोकस पॉइंट एंड दिस इज द सेकंड फोकस पॉइंट. तो केपलर ने क्या बताया, द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन इलिप्स, इट इज नॉट सर्कुलर. ओके, केपलर ने बताया कि जो सन है, फॉर एग्जांपल अगर सन यहाँ पे सेंटर में है, the orbit of the planets will be an ellipse, not in the circular form, but planets will revolve around the sun in the elliptical orbit. Okay, अभी अगर ellipse है तो इसे 2 फोकस पॉइंट रहेंगे, this is 1 and this is 2. तो आपका जो सन रहेगा at any of the 2 points, यहाँ पर भी हो सकता है या फिर यहाँ पर भी हो सकता है. एंड ये जो ऑर्बिट जो आपका प्लैनेट रहेगा, प्लैनेट यहाँ पे रहेगा, सन ये वन ऑफ द फोकस पॉइंट पे, एंड प्लैनेट जो रहेगा वो आपका इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा अराउंड दैट सन. ओके, सो दिस इज द वेरी फर्स्ट लॉ, this is very first law of the Kepler's. So first law is nothing but the orbit of the planet is an ellipse with the sun at one of the foci. जो orbit का planet है is nothing but the elliptical form, and जो sun रहेगा आपका दोनों में से किसी एक फोकस पॉइंट पे रहेगा. Now Kepler's second law. What is Kepler's second law? The line joining the planet and the sun sweeps equal area in equal intervals of time. What is meant by sweeps? Sweeps is nothing but covers. Simple word. Sweep is nothing but covers. तो अगर आप देखोगे line joining the planet and the sun, this is the planet, this is the planet, this is the sun, and this is the line joining them. Okay.
कंसिडर अगर 10 डेज में, ओके आई एम जस्ट कंसिडरिंग द टाइम एज 10 डेज, अगर 10 डेज में ये जो प्लैनेट है पहले यहाँ पे था, फिर जाके यहाँ पे पहुंचा, okay, now this is the area which is he covered, which is nothing but A to S B, right? This is A, S and B. This is area which is covered by that planet in 10 days. Now let's consider for any random location. अभी consider करते हैं कि E location पे, which is the line joining the planet and the sun. अगर आप देखोगे तो ये है आपका line joining the planet and the sun. This is the line. ओके, तो यहाँ पे अगर 10 डेज में ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल करता है विच इज नथिंग बट ई एस एफ, राइट, मतलब ये इतना एरिया अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये दोनों एरिया ऑफ ए एस बी इज इक्वल टू रहेगा आपका एरिया ऑफ ई एस एफ, मतलब सेम टाइम इंटरवल में जो प्लैनेट है वो सेम डिस्टेंस कवर करेगा। अभी आपको डायग्राम से तो समझ में नहीं आता होगा बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखोगे दिस इज 3D फॉर्म, राइट, तो यहाँ पे आपको कम दिखेगा, राइट, यहाँ पे आपको कम दिखेगा, यहाँ पे आपको मतलब यहाँ पे आपको ये कम ज्यादा दिखेगा सिंपली अगर बोला जाए तो, लेकिन एज पर द केपलर एंड विच इज ट्रू आल्सो, ओके, एज पर द केपलर जो प्लैनेट्स है that planets will cover the equal distance or equal area in equal intervals of time. So these are the two laws. Let's see Kepler's third law. क्या कहता है Kepler's third law? देखो ये जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया था ना कि ये इलिप्स है, this is the focus point 1, this is the focus point 2, दोनों में से किसी एक पॉइंट पे आपका सन रहेगा and planets will revolve around that sun in the elliptical orbit. Now third law क्या है आपका? The square of its period of revolution. What is mean by period of revolution around the sun? मतलब ये जो planet है, planet को एक complete revolution, okay, फिर से वापस उसी पोजीशन पे आने के लिए जितना टाइम लगेगा, let's consider, we will consider it as a capital T. The square of the period of revolution means square period of revolution का square करना है is directly proportional to the cube of mean distance of the planet from the sun. What is the mean distance, right? मतलब अगर आप देखोगे फर्स्ट वाला कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया कि what is this one, let's make it, sorry, this is proportional sign, okay, हाँ, this is proportional. Period of revolution, what is mean by period of revolution around the sun? Capital T is nothing but the period of revolution around the sun. एंड मीन डिस्टेंस को हम कंसीडर करते हैं स्मॉल आर से, ओके, विच इज नथिंग बट द जो भी आप मीन डिस्टेंस कंसीडर करते हैं ये सारे डिस्टेंसेस का मीन डिस्टेंस। तो थर्ड लॉ क्या कहता है आपका? द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस, ओके, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस मींस t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। अभी अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वालिटी का साइन लगाना है तो यहाँ पे कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, तो अपना इक्वेशन बनेगा t स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू r क्यूब, ये मल्टीप्लाई वाला इधर डिवाइड में आएगा, सो t स्क्वायर डिवाइडेड बाय r क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो दिस इज द थर्ड Kepler's law, ओके। सो ये जो पॉइंट है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, 3 मार्क के लिए मैक्सिमम 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आने के हाईली चांसेस होते हैं, मतलब मैंने प्रीवियस ईयर ऐसा क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है जहां पे ये क्वेश्चन है नहीं, किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, तो वेदर इट मे बी इन द डायग्राम पर्सपेक्टिव, वेदर इट मे बी एक्टिविटी के पर्सपेक्टिव से हो सकता है, ओके। सो लेट्स रिवाइज इट, व्हाट इज केपलर्स फर्स्ट लॉ? केपलर्स फर्स्ट लॉ कहता है कि जो ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट है वो होता है एलिप्टिकल एंड सन होता है दोनों में से किसी एक फोकस पॉइंट पे। व्हाट इज केपलर सेकंड लॉ? केपलर सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो लाइन जॉइनिंग द सन एंड प्लैनेट है स्वीप्स मतलब कवर्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब इक्वल एरिया कवर करेगा इक्वल टाइम इंटरवल में। एंड थर्ड लॉ क्या कहता है कि जो आपका पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन का स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है mean distance के क्यूब के साथ, okay, so this is your Kepler's law।